take a deep breath in. Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. So the good news is that we are on chapter 1, fourth section has started. And today we are going to do verses 14 to 28. And that will bring us to the end of chapter 1. We will have covered 297 pages out of a total of 912. That means 1/3 of the book will have be covered by the end of this session. Cause, that means the karan. So 14th and 15th verses speak about this. Brahma is presented in all Upanishads as the cause of the space, as it is in any one of them. Matlab, it is the space of all the Panch Mahabhutas. It is the very space. जैसे कि हम लोग सबके अलग अलग घर हैं, तो उन घरों को एक स्पेस चाहिए ना. Brahm is that eternal space, which is the space of space. काल और दिशाएं, समय और काल, दोनों को स्पेस देता है ब्रह्मा. 15th sutra is, in the beginning, all this was but non-existence. ऋग्वेद का पहला जो श्लोक है उसमें क्या कहते हैं कि कुछ भी नहीं था. In the beginning, all was but non-existence. In the beginning, all this was but non-existence, but this non-existence is not void. ये हम लोगों ने पिछली बार बार कई एग्जाम्पल्स देकर के इस चीज को समझा था कि वो जो void है, जो एक बीज को फोड़ने के बाद श्वेत केतु कहता है कि इसमें से तो कुछ भी नहीं निकला पिताजी, तभी भी वो कहते हैं कि but this void is the cause of that huge tree, the huge banyan tree, and that is the cause of multiple banyan trees, thousands of banyan trees that can cover acres and acres of land. So it is not a void, but it is filled with the possibilities, immense possibilities. Now we are on topic 5 and the heading is Balaki ya Balaki. And in this topic is covered by sutras 16, 17 and 18. Now I'm reading the 16th sutra's explanation. Because the word work or creation is indicative of the universe, the one whom this work is ascribed is Brahma. जैसे हम अपने सामने इतनी बड़ी क्रिएशन को देखते हैं, तो इतनी बड़ी क्रिएशन जो है वो कहाँ से पैदा हुई, उसके पीछे कोई कॉज तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना, जिससे कि ये इतनी बड़ी क्रिएशन संभव हो जाए. तो this he is saying that because the word creation or work is ascribed to some, it means that the universe has come up
So what is the cause? The cause is the Brahma. So here you see why it is called Balaki, because there is in कौशताकी उपनिषद, एक और उपनिषद का यहाँ रेफरेंस दिया है, कौशताकी उपनिषद, उसमें एक कॉन्वर्सेशन रिपोर्टेड है बिटवीन बालाकी एंड अजातशत्रु. अजातशत्रु और बालाकी के बीच की एक कॉन्वर्सेशन रिपोर्टेड है, और उसमें उस कॉन्वर्सेशन में वो लोग रेफर कर रहे हैं, किसको रेफर कर रहे हैं? द वाइटल फोर्स. एक है फोर्स और एक है वाइटल फोर्स. So they are referring to the vital force. Now in the 17th verse, it says, the Supreme Self is the subject of our contemplation here. अभी देखिए हम लोग सब आज यहाँ पर मिले हैं इसलिए कि हम उस सुप्रीम सेल्फ के बारे में कुछ विचार करें, कुछ निधिध्यासन करें, कुछ उसका एक माहौल बनाएं जो कि वो हमारे जहन में उतर जाए. It is the vital force of the prana as well as the individual soul. तो जो प्राण है, जैसे कि एक हमारा अन्नमय कोश है, तो अन्नमय कोश से a little subtler and a little more interior is our pranamay kosh. So we think that that is the vital force, and that is the vital force which is behind the functioning of all our organs or any aspect of the body. हाँ, लेकिन जो उस vital force को भी प्राण दे रहा है, वो सेम तत्व है जो कि एक इंडिविजुअल बीइंग को भी वो वाइटलाइज करता है, वो उसको सेंशिएंट बनाता है. हाँ, तो ये उन लोगों की कॉन्वर्सेशन में उभर करके आता है. अब 18th सूत्र में एक नए एस्पेक्ट को वो दिखाता है. नया एस्पेक्ट नहीं, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं उससे डिफरेंट एस्पेक्ट. When the sleeping man dreams no more, he becomes unified with the prana itself. From this self, the organs move towards their own seats. तो यहाँ बोलते हैं कि देखिए जो प्राण है उससे हम यूनिफाइड हो जाते हैं, और फिर फ्रॉम दिस सेल्फ, द सुप्रीम सेल्फ, ही इज रेफरिंग टू द सुप्रीम सेल्फ, द ऑर्गन्स मूव टुवर्ड्स देयर ओन सीट. फ्रॉम द ऑर्गन्स इशू द प्रिजाइडिंग डेटीज. From the deities issues the sense of objects. The sense of objects and the attraction cause a craving and love felt by the individual soul. यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में उसने कहा है. अभी तक हम लोग क्या बात करते थे कि भाई ये जितने पंच महाभूत बने हैं तो ये इतने महान और इतने पावरफुल थे कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि इनको एक डेटी बना देते हैं, एक देवता. तो हमारे अंदर इतने देवता हैं. अब वो कैसे रिवर्स उसको कैसे किया है यहाँ पर कि when the sleeping man dreams no more, तो क्या हुआ है कि वो पूरा का पूरा he has become unified with the prana. And from this unified homogeneous self, which is a conglomeration of the 5 elements of the human body, the organs move towards their seats, and from the organs issue the presiding deities, and from the deities issues the sense
सेंस ऑब्जेक्ट्स। अब आंख हो गई, तो आंख को लुभाने के लिए कोई खूबसूरती उसको दिख जाती है इस क्रिएशन में, फिर उसकी क्रेविंग उसकी तरफ हो जाती है। जैसे हम लोग कोई भी बढ़िया सा फूल देखें, चाहे हम लोग जंगल में भी जाते हैं, अगर कोई बढ़िया सा फूल दिख जाता है तो भाई मन में आता है, अरे ये वाला इसका बीज मैं लेकर के चलूं अपने गार्डन में, मैं अपने इसको लगा लूं। होता है कि नहीं? तो ये पूरा क्या चक्कर है, इसको पूरी तरह से ये 18वें सूत्र में उन्होंने समझाया है। So it is understood that the entity in which the individual being is absent, and there is no stimuli to disturb the peace. The entity is the Supreme Self. It lies in the space that is in the heart. अब देखिए ये वापस उस बात पर आ गया कि कैसे उस ब्रह्म तत्व को, जो इतना विस्तृत, व्यापक, इनफाइनाइट है, उसकी इन्फिनिटी हमको कहाँ महसूस होती है? ये अंगुष्ठ प्रमाण, जो कि अंगूठे जितनी स्पेस जो हमारे हार्ट में है, हमारे हार्ट में अगर इसको ओपन किया जाए, जिसमें से कि वो ब्लड सारे शरीर को पंप होता है, उसमें जो स्पेस है, जो जगह है, वो हमारे अंगूठे के बराबर है। वहां पर इसकी पहली जो चेतना, जो महसूस, जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सुप्रीम डेटी which is all pervading is felt here in the heart. तो ये कैसे, क्या कह रहा है? So it is understood that the entity in which the individual being is absent. तो deep sleep में क्या होता है कि we are not aware of our own presence as an individual. वो हम absent हो जाती है। तो क्या होता है? There is no stimuli. तो ये जो डीप स्लीप की अवस्था है, ये ऐसा है जहां पर कि कोई भी स्टिम्युलाई हमको इधर उधर भगाते नहीं है। When there is no stimuli to disturb the peace, that entity is the Supreme Self. अब देखिए, if you read in between the lines, what is it saying? इस संसार में जब हमको कोई भी चीज ऐसी लुभावनी नहीं लगती कि हम उसके पीछे भागना शुरू कर दें, तब हम अपने घर में लौट जाते, तब हमको वो अपने ही अंदर वो पीस महसूस होने लगता है कि नहीं? इसी बात पर घूम फिर के पहुंच गए कि नहीं? The small space in the heart is ever connected to the bigger space. हमारे कमरे का जो हवा है, जो स्पेस है, वो हमेशा बाहर के आसमान से कनेक्टेड होती है कि नहीं? हम चाहे कितनी भी खिड़कियां, दरवाजे बंद कर लें, तभी भी उसके वो हमेशा कनेक्टेड रहती है। घटाकाश, इसको क्या बोलते हैं? ये मटके का आकाश। घटाकाश इज कनेक्टेड टू द महाकाश। और इसके लिए एक और एग्जाम्पल से हम प्रूव कर सकते हैं कि एक ही सूर्य कितनी थालियों में चमकता है। आप समझ लीजिए कि इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप करने चले, तो अपने आंगन में आप थालियों में थोड़ा थोड़ा पानी भर करके रख दीजिए जब सूरज चमक रहा हो, तो वो एक ही सूर्य 1000 उसमें थालियों में भी चमक सकता है। वो एक ही परम सुप्रीम सेल्फ, वो हम सबके हृदय में भी वो ही हमारे हृदय की भी धड़कन बन करके हमको भी सेंसियंस प्रदान कर रही है। ठीक है? So now we have covered up to 18 sutras, from 14 to 18th are over, and now we have come to topic 6. Now this is called correlation of passages. मैंने जानबूझ करके जितना भी डिबेट चलता रहता है बिटवीन द वेरियस फिलॉसफीज,
उस तरह के सेंटेंसेस अवॉइड करके उस सुप्रीम सेल्फ को एज अ सुप्रीम सेल्फ ही प्रेजेंट किया है, डाउट्स को हटा दिया है, क्योंकि दैट इज नॉट व्हाट वी आर ट्राइंग टू learn how to do. Okay, we are only trying to establish ourselves in our own consciousness. ठीक है? 19th, the self which is to be realized and meditated upon is revered for one's own love for the self. एक यहाँ पर और इन्होंने एक बात निकाली है कि जो हमारा अपने प्रति प्रेम होता है। अब जहां प्रेम की बात करी वहां पर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस आ जाती है। समझ गए कि नहीं? क्योंकि हम लोगों ने क्या एक बहुत बड़ा पॉइंट समझा था कि प्रेम, लव इज अ फैकल्टी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। लव इज अ फैकल्टी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जिसको हम कह देते हैं डिवाइन लव। भगवान खाली प्रेम कर सकता है। अरे नहीं, भगवान इज जस्टिस। भगवान नहीं, ब्रह्म इज जस्टिस। और ह्यूमन बीइंग कैन बी फुल ऑफ लव, he can be full of compassion, he can overlook the faults of the others. So this is a human quality, virtue. This can be described as a human virtue. तो बोलता है कि the self which is to be realized and meditated upon is revered for one's own love for the self. अभी देखिए हम लोग सब यहाँ पर क्यों आए हैं? सीधे अपने से ही बात पूछ लीजिए। हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए और परम सुख की प्राप्ति हो जाए। मानते हैं कि नहीं? हम अपने लिए ये कर रहे हैं। मुक्ति के रास्ते पर चलते हैं तो खुद के लिए ही चलते हैं। वानप्रस्थ लेते हैं तो खुद के लिए ही लेते हैं। इसके बारे में अभी आप लोगों को मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य की कहानी मैं आपको सुना दूंगी। हाँ, फिर आप लोग को ये पाठ और समझ में आ जाएगा। जैसे एक पत्नी अपने पति से वो बहुत प्यार करती है, क्योंकि अब देखिए कितने टू व्हाट एक्सटेंट वी आर सेल्फिश। वो प्यार करती है कि उसके जीवन में वो पति कुछ भरता है। उसके जीवन में वो रुपए का पैकेट ला करके देता है हर महीने। उसके जीवन में वो उसको पिक्चर ले जाता है। उसके जीवन में दोनों जन साथ में रेस्टोरेंट जाते हैं। तो मुझे मजा आता है, इसलिए मैं पति को की कदर करती हूँ। अपने लिए इतने सेल्फिश होता है। ये ह्यूमन बीइंग के अंदर एक सेल्फिशनेस का इतना बड़ा कीड़ा है, उसको खा करके पूरा बैठा है। सेल्फिशनेस के अलावा इसके अंदर कतरा भी नहीं है। इस सेल्फिशनेस से वो थोड़ा बहुत उठता है when it is conducting the role of a mother. Otherwise this one is selfish to the extreme. यहाँ तक कि उसके पति की मौत अगर हो जाएगी तो वो इसलिए नहीं रोती है कि उसका पति चल बसा। वो इसलिए रोती है कि मेरा क्या होगा अब। जितने आंसू हम बहाते हैं वो केवल अपने लिए बहाते हैं। प्रभु आप देख लीजिए इसकी क्या गतरस हालत है। ये किसी पेडेस्टल पर खड़े होने के लायक नहीं। आप देख लीजिए इतना ये गुजरा है इस हद तक। तो जितना टेक्स्ट अभी तक एग्जामिन करा है उससे क्लियर होता है कि यहाँ सुप्रीम सेल्फ की ही बात हो रही है। यहाँ इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। मैंने सबका नटशेल करके बहुत से आर्ग्यूमेंट्स को रिफ्यूट करके जिस कंक्लूजन पर ऋषि मुनि आए तो वो मैंने आपके लिए इन अ नटशेल 3 लाइनों में लिख दिया कि जितना टेक्स्ट अभी तक एग्जामिन करा है उससे क्लियर होता है कि यहाँ सुप्रीम सेल्फ की ही बात हो रही है। अब ये लो, अब एक और एग्जाम्पल देता है। बृहदारण्यक उपनिषद ये कहाँ पर आता है? यजुर्वेद में। बृहदारण्यक उपनिषद कहाँ आता है? यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद।
यजुर्वेद दो हैं, एक शुक्ल एक कृष्ण। तो शुक्ल यजुर्वेद में बृहदारण्यक उपनिषद आता है और इसमें याज्ञवल्क और मैत्रेयी संवाद है। तो याज्ञवल्क की दो पत्नियां थी, एक मैत्रेयी थी और एक कात्यायनी थी। कई साल दाम्पत्य जीवन बिताने के बाद उसने ये डिसाइड किया याज्ञवल्क ने कि मैं अब अपने प्रोग्रेस के लिए और वन प्रस्थान करना चाहता हूँ। तो वो जमाना ये था कि उस समय किंग्स जो थे वो ऋषि मुनियों को बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज करते थे, क्योंकि हमको मालूम था कि हम इतने ऊंचे लेवल के थिंकिंग प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं एज अ कंट्री। तो किंग्स वुड पैट्रोनाइज ऋषि मुनि because in this kind of a ambience in which the rishi munis used to live, they could do this higher thinking. We have discussed this point time and again that in grihastha ashram we tend to become so busy and always urgent things keep on coming at us, so we do not have time to delve into the subtler aspects of spiritual thought. You understand? So we have to depend on the Shastras. So we need the Guru to show us the path. You understand? तो याज्ञवल्क, तो उस समय क्या हुआ था, एक बार आप लोगों को वो कहानी याद होगी कि एक बार राजा जनक ने एक बहुत बड़ा इस तरह से ये कहा था कि जो भी सबसे ऊंचा ब्रह्मवेत्ता ऋषि है वो मेरी ये 1000 गायें ले जा सकता है, जिनके की सींग जो थे वो सोने से मढ़ दिए थे और हर एक सींग के ऊपर हर एक गाय के ऊपर 100 सोने की अशर्फियां भी लटका दी। और याज्ञवल्क ने अपने शिष्यों से कहा था कि चलो सब गायों को अपने आश्रम में लेकर के चलो। याद है ये कहानी कि सबके सब 1000 गायें और ये सोने के सींग और सबके ऊपर वो अशर्फियां लटक रही हैं। याज्ञवल्क हाँक करके ले गया था और सारे ऋषि मुनि देख करके भौचक हो गए कि ये क्या कर रहा है, और सब लोगों ने उसको बहुत हजारों सवाल पूछे और याज्ञवल्क हर एक का जवाब ऐसे सटीक तरह से दे पाया कि सब ने कहा कि ठीक है, he is worthy of collecting all the cows. So in this way Yajnavalkya had amassed a lot of wealth for his ashram. He needed the wealth not for himself, but because he was running a very big gurukul and all kinds of sacrifices and yajnas and ये सब होते थे, और उस आश्रम में बहुत से inmates थे, तो उन सब के लिए और हर समय उनके यहाँ से प्रसाद और ये सब बंटता ही रहता होगा सब लोग के लिए, तो वो सारी की सारी दौलत लेकर के चला गया था। अब क्या हुआ कि इसने निर्णय लिया कि भाई मैं तो वन प्रस्थान करना चाहता हूँ अपनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए, और तो वो चाहता था कि उसकी ये जो 2 पत्नियां हैं उनका नाम याद है ना, कि एक का नाम था मैत्रेयी और दूसरा का नाम था कात्यायनी। तो मैत्रेयी ने उससे एक सवाल, उसने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोगों में आपस में कोई भी मनमुटाव हो, तो अपने सामने ही इस धन संपत्ति को अच्छी तरह से बांट करके मैं जाऊंगा। तो मैत्रेयी ने जो सवाल याज्ञवल्क से पूछा उससे तो वो दंग रह गया। तो मैत्रेयी ने कहा कि ये सब जो सोना चांदी आप हम लोगों में बांटना चाहते हैं, क्या ये हमें हमेशा सुखी रखने की क्षमता रखता है? Is it capable of keeping us always happy in eternal happiness? सेकंड सवाल कि इससे क्या हमारे अंदर से भय निकल जाएगा पूरी तरह से, में हम निर्भय हो जाएंगे? भाई इतना सोना चांदी है, हमको क्या भय है, कोई भी विपत्ति आएगी तो सोने चांदी का इस्तेमाल करके हम पास कर जाएंगे। क्या हमारे अंदर से भय हमेशा के लिए निकल जाएगा? तीसरा सवाल, क्या हमको उस परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी जिसकी खोज में आप ये आश्रम छोड़ करके जा रहे हैं? और चौथा, क्या इससे वो
अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा, जिसका बखान शास्त्रों में किया गया है। तो याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, नहीं, ये सोना चांदी धन दौलत ये सब नहीं दिला सकता, ये चारों चीजें तुमको नहीं दिला सकता। तो मैत्रेयी ने फिर अपना भी डिसीजन सुना दिया। तो मैं भी उसी की खोज में जाना चाहती हूँ जिसकी खोज में आप जा रहे हैं, और जिससे ये चार चीजें जो अभी मैंने इन्यूमरेट करी हैं ये मुझे मिल जाएं। तो उस समय का आप समाज देखिए, उस समय का समाज जो था वो स्त्रियों को ये पूरी छूट देता था कि तुमको भी जब वानप्रस्थ में जाना है तुमको ये इजाजत है। समझ गए? तो जो बोलते हैं कि भाई हमारा ये सब जो सप्रेशन ऑफ द वुमेन है, ये कब शुरू हुआ? जब हमारे यहाँ लुटेरे के भेष में बहुत से राजा महाराजा आ गए जो गलत नजर से औरतों को देखते। ठीक है, तो अब याज्ञवल्क्य ने क्या कहा? अब एक ये लाइन अपने हृदय पर छाप लेने की जरूरत है। देयर कैन बी नो इमॉर्टैलिटी गेन एक्सेप्ट from the knowledge of the self. So the Upanishads and the Smritis have declared. Upanishad और Smriti. Upanishad क्या है? श्रुति है. Now I'm giving you the spiritual viewpoint. Now this is also a very, you must catch this. Since the enjoyer is the master of the enjoyable things, it is said figuratively that all enjoyable things become known when the enjoying soul is known. मतलब क्या? हम लोग कहते हैं ना कि इसके बाद कोई प्लेजर्स हमको लुभा नहीं सकते। क्यों नहीं लुभा सकते? क्योंकि हम ऑलरेडी we are the experiencer, we are the enjoyer, we are the master of all enjoyment. But we don't know ourselves, so we run hither and thither. Once we know who we are, all pleasures lose their charm for us. ठीक है कि नहीं? You all are agreeing with me on this point? We are already the master because we are the enjoyer of the enjoyment. So we are master? Or should we become gulam of the enjoyment? We are the master, and once we know who I am, तब उन सब चीजों का चार्म मेरे जीवन से चला जाता है। ठीक है? Now we are on the 20th sutra. The above is not talking about the fulfillment of the individual soul. यहाँ पर फिर से वो लोग इस बात पर आ गए हैं ऋषि मुनि कि ये इंडिविजुअल सोल के बारे में बात चल रही है या ये सुप्रीम सेल्फ के बारे में बात चल रही है। All the pleasure seeking is dropped when the supreme self, which is the sustainer of all self organs, is realized. There is the reference of Asmartya, a teacher who has explained this in his discourses. ये लोग किस तरह से बात करते हैं कि भाई फलाने ऋषि ने इस तरह से इसको समझाया था, याज्ञवल्क्य और मैत्रेय संवाद में इस तरह से हुआ था, और ये सब बात करते हैं तभी आप लोग के लिए भी इंटरेस्टिंग होता है ना। अगर ये सब बात नहीं करे, प्योर फिलोसफी में चले, तो मैथ्स की क्लास की तरह से हम लोग को लगेगा, बिकॉज इट विल बिकम टू एब्स्ट्रैक्ट। तो ये लोग भी जब आपस में बात करते हैं, अरे देखो वो असमर्थ्य जो टीचर था उसने भी इसको ऐसे से समझाया। ठीक है? अब फिर 21st में एक और की बात करते हैं, Odulomi says that the start is made with the individual soul on the premise that it is identified with the supreme self. अरे हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल सोल की बात ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल सेल्फ उस ब्रह्म के साथ एकात्म है, इसीलिए यहाँ पर इंडिविजुअल सोल का जरा भी जिक्र भी हुआ है। ये बोल रहा है वो, the individual soul is tainted when associated with the aggregate of body, mind and self organs, sense organs,
and becomes purified through the practices of knowledge and the quieting of the mind through meditation. कि वो हर थाली के अंदर जो पानी रखते हैं वो प्योरीफाइड होना चाहिए. वो प्योरीफाइड होता है प्रैक्टिसेस से और मेडिटेशन से. The quieting of the mind is necessary. अब फिर ये लोग एक एग्जाम्पल देते हैं. The rivers flowing down in the oceans become indistinguishable on reaching the sea. वो रिवर जानबूझ करके अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देती है by giving up their names and forms. So also the illumined soul, having become freed from name and form, reaches the self-effulgent Purush that is higher than the higher Maya. Highest Maya नहीं लिखा, higher Maya. यहाँ पर किसका जिक्र है? ये सब टेक्निकल बातें हैं. पराशक्ति और अपराशक्ति. अपराशक्ति कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है अपराशक्ति मेरी ही लोअर शक्ति है और पराशक्ति मेरी ही हायर शक्ति है. तो जो कुछ अच्छा है, जो कुछ भी स्पिरिचुअल है, जो कुछ भी ग्रॉस को छोड़ करके इंटरनलाइज होने की तरफ की वो कदम बढ़ते हैं, वो सब मेरी पराशक्ति के कारण है. और जो कुछ material है, the entire terrestrial world with its myriad intricacies, ये सब मेरी लोअर प्रकृति है, अपराशक्ति. ये सब अविद्या है. अविद्या का नाम अपराशक्ति और पराशक्ति, हायर माया. The individual can approach the Purush by discarding name and form which erstwhile belonged to itself. जिस दिन हमको ये समझ में आएगा कि इसके अंदर की जो चेतना है वो ही तो सब में है, मैं ही सब में बैठा हुआ हूँ, then he becomes united with the Purush. As he does every day in deep sleep, he will become united in his wakeful state. अपने आप को क्या करके जानना है? As a person going from here to there नहीं. Something is moving. I do not know what. This one has decided to move. It is moving. I am the all-pervading. इतना इसके साथ लग जाना है, जुड़ जाना है, एक हो जाना है. 22nd श्लोक. कार कृत स्नह, अपना मत बोलते हुए. कार कृत स्नह, कार कृत स्नह, अपना मत बोलते हुए कहते हैं कि that very supreme self exists as the individual soul. तो हम लोगों ने इस चीज को किस तरह से एक्सप्रेस किया था विवेकानंद के शब्दों में कि we are spiritual beings having a human experience. कार कृष्ण के शब्दों को विवेकानंद ने कैसे कहा था? We are spiritual beings having a human experience. We are not human beings trying to study spirituality. We are already spiritual beings. It is the existential cause. What is the existential cause? Brahma is the existence. The Nimitta Karan. The effect of the Maya causes the effect of the phenomenal experiences. इसके ऊपर जब माया का इफेक्ट आ जाता है तब हम लोग संसार में अलग अलग तरह के चेष्टाएं करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे मैं हिटलर बनूं, चाहे मैं गांधी बनूं, वो सब माया के इफेक्ट से होता है. टॉपिक 7, ब्रह्मा इज द मटेरियल कॉज. अभी एग्जिस्टेंशियल कॉज पर आया था, अभी बोल रहा है अब ये दो कारण होते हैं कि द निमित्त कारण, नाम सुना हुआ है निमित्त कारण. इतना हम लोग ने स्पिरिचुअलिटी का वो करा है अध्ययन कि हमने ये दो नाम सुने हुए हैं, निमित्त कारण और उपादेय कारण, मटेरियल कॉज. Brahma must be the material cause
so as not to contradict the statement. कौन सा statement? At the beginning there was not but the self. He created the vital force out of himself. वो ही बना, खाली एकमात्र तत्व वही था तो वो ही बना ना. 24th में है, this is understood from the teaching about the will to create. God said, I want to become, one became many. I want to become many. There has to be a will. कुछ भी चीज चाहे आप जगत में करते हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल फील्ड में करते हैं, एक विल होने की जरूरत है. This leads to the understanding of the self as the efficient karan and the material cause. I shall become many. Therefore, Brahma is the origin and the dissolution of the universe. इसलिए हम लोग जब इवन हमारे गांव वाले जो कि बहुत भोले होते हैं, कुछ पढ़े हुए लिखे नहीं होते, इतना उनको मालूम है कि सब कुछ भगवान के विश से हो रहा है, विल से हो रहा है, हमारा कुछ नहीं. लेकिन इसमें अगर इसको पूरी समझ के साथ आदमी नहीं करे तो आदमी अकर्मण्य हो जाएगा. वो ऐसे ही हाथ फैला करके बैठ जाएगा. हैविंग नो विल ऑफ हिज ओन. इसमें अपना विल कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए उसका मालूम होना चाहिए. तो इसमें देखिए वो जो रश्मि रथी की करता है, उसमें भी भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते. कृष्ण भगवान भी यही बात कह रहे हैं. ठीक है. अब 26 है कि ब्रह्म क्रिएटेड इटसेल्फ बाय इटसेल्फ. There was no dependence on anything. It became the elements. Which what became? The Brahma became the elements. तो 3 elements gross elements कहलाते हैं. कौन से 3 elements? Earth, water and fire. It became the elements. 3 are gross. What are the gross elements? Earth, water and fire. And 2 subtler elements. What are they? Wind and space. ठीक है. He is the creator, the Lord, indwelling soul, the source of all beings. ठीक है. अब देखिए, एक शब्द बहुत बार इस्तेमाल होता है, योनि. शिवलिंग को दिखाते हैं, किसमें दिखाते हैं? योनि भी बनाते हैं. Yoni is used as the word indicating the material cause. अपरा प्रकृति को योनि कहते हैं. हाँ. अपरा शक्ति, अपरा माया, उसको कहते हैं योनि. Yoni is used as the word indicating the material cause. The earth is the yoni. Yoni can also mean a seat. तो शिवलिंग को हम उस योनि में बैठाते हैं. हम लोगों ने शुरू में क्या कहा था कि वो सारे ऑर्गन्स को स्थान दे देते हैं, वो डेटीज को स्थान दे देते हैं. सीट, उनकी सीट है. हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो देवताओं की सीट हो जाते हैं. और इसमें मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इज स्पाइडर वीव्स इट्स ओन नेट. खुद ही अपने सलाइवा से नेट बनाती है और खुद ही जब वो चाहती है पूरे नेट को समेट लेती है. Hereby all is explained. जगत की उत्पत्ति और ब्रह्म का स्वभाव. ब्रह्म में क्वालिटीज नहीं होती. इट इज हिज स्वभाव. what is his स्वभाव? सत चित आनंद. ये ब्रह्म की क्वालिटीज नहीं है, बिकॉज इट इज फॉर्मलेस. ये उसका स्वभाव है. सत चित आनंद. सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मन.
ठीक है। अब बहुत हो गया ये टेक्निकलिटी, और अब हम लोग एक कहानी सुन लेते हैं। दमास्कस में एक राजा रहता था। उसे एक रात एक सपना आया। क्या सपना आया? कि एक काली छाया उसके पीछे खड़ी है। उसने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं तुम्हारी मौत हूँ, शाम ढलते मैं तुम्हें लेने आ जाऊं। तो वो एकदम घबरा कर उठ गया, और उस इतनी आधी रात में ही उसने अपने राज्य के, अपने कैपिटल में जितने भी वाइज मैन रहते थे, जितने भी पंडित और ज्योतिषी रहते थे, उन सबको बुला लिया, और अपने सब बुद्धिमान मंत्रियों को भी उसने बुला लिया कि भाई मुझे तो इस चीज का सॉल्यूशन करना है, ये क्या है, ये मौत मेरे सामने लटक रही है। तो सब लोग पहुंच गए, भी राजा ने बुलाया है, क्यों कौन नहीं आएगा, फटाफट वहां पर सब पहुंच। तो उसने कहा, राजा ने कहा कि भाई मेरी इस ड्रीम का मतलब क्या है, आप लोग मुझे समझाइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग एकदम जल्दी से आपको बता देंगे। आपके पास में जितने शास्त्र और ये सब पुस्तकें हैं जो कि सपनों वगैरह के बारे में बात करती हैं, जितने भी वो हैं, आप जल्दी से वो यहाँ पर मंगवा दीजिए। तो हम लोग, अब इतने सब लोग हैं, हम लोग कंसल्ट करके अभी आपको बता। अब देखिए, शास्त्र वेताओं के लिए एक मत होना बहुत ही मुश्किल है कि नहीं है? ये यहाँ पर हम लोग जो ब्रह्म सूत्र में भी इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं, वो इसी वजह से हो रही है ना, कि वो कहते हैं कि नहीं, फलानी फिलोसफी में तो यूं लिखा है, फलानी फिलोसफी में तो यूं लिखा है, तो वो लोग इसी बात में घंटों बिता देते हैं। तो कोई एक मत होना, सपोज कि उन लोगों को किताब में से सॉल्यूशन मिल भी जाए, पर उसको एक मत, उन लोगों के लिए एक मत होना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए ब्रह्म सूत्र जैसे शास्त्र की जरूरत भी है। That is why a pustak like the Brahma Sutras was so much badly needed, because there were all these various kind of philosophies which were really very prominent in various sects of the country. So they had to bother about how to become एक मत, और उसमें कितने दिन निकल जाते हैं, है ना? तो एक सिस्टमैटिक वे में एग्जाम्पल्स दे दे करके प्रूव करना पड़ता है। सनातन धर्म की 6 फिलोसफीज हैं, और भारत भूमि पर पनपे 3-4 और भी दर्शन हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। राजा का प्रधानमंत्री, जो एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी था, वो जानता था कि ये लोग तो कभी भी एक डिसीजन पर पहुंचेंगे नहीं, और समय तो बहुत कम है। तो उसने राजा को एक सुझाव दिया कि देखो, तुम इस पचड़े में पड़ो ही नहीं, ये लोग तुमको एक चक्कर में डाल देंगे। तुम तो अभी एक घोड़ा लो, और उस पर सवार होकर यहाँ से बहुत दूर निकल जाओ, क्योंकि मौत यहाँ पर आने वाली है, तुमको यहीं पर ढूंढने को आएगी। तो तुम जितना ज्यादा दूरी तय कर सको ना, तुम यहाँ से सरपट भाग जाओ। तो राजा को ये बात जच गई, और उसने अपने अस्तबल का सबसे फास्ट घोड़ा लगवा लिया, और फिर उसके ऊपर वो सवार हो गया, और वो उसने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। मतलब वो अपनी रानी को बहुत बार कह चुका था कि देखो, मेरे लिए तो तुम्हारे बिना जीना ही एकदम मुश्किल है, मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। उसको भी उसने गुड बाय नहीं बोला। उसने अपने दोस्तों से बहुत वायदे करे हुए थे कि भाई, जिंदगी का असल मकसद तो ये दोस्ती ही है, दोस्ती के बिना है ही क्या जीने में। उनसे भी उसने गुड बाय नहीं किया। उसको कोई चीज की याद नहीं रही, क्योंकि मौत उसके सिर पर लटक रही थी, नंगी तलवार यहाँ पर लटक रही है हम लोग सबके सिर पर। हाँ, और अब वो भागा, और इतना फास्ट, घोड़ा भी बहुत फास्ट था, और आज तो उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि सूरज सिर पर आ गया है, और उसके शरीर पर से पसीने की नदियां बह रही हैं, वो भी उसको महसूस नहीं। भूख प्यास तो भूल ही गया था, न पानी पीने के लिए रुका, न खाना खाने के लिए रुका। और सांझ ढले वो आफ्टर ऑल एक बगीचे में जाकर के गया, और अब उसने कहा कि अब तो उसने मौत को मात दे दी है, चेकमेट कर दिया है मौत को, और मैं तो यहाँ पर अब आ गया, इतनी दूर तो मौत कहाँ मुझे ढूंढते ढूंढते आएगी। तो फिर वो उसने घोड़े को बांधा, और उसको उसको सहलाया,
और उसको वो खाना पानी देने ही वाला था कि उसने महसूस करा कि पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। तो एकदम से चौंक करके पीछे देखा तो कौन थी? तो मैं तो मौत हूँ और मैं खुद ही सोच रही थी कि मुझे तो तुमको यहाँ पर आकर के मिलना था और तुम इतना डिस्टेंस कैसे तय करके आ जाओगे। तो मैं तुम्हारे घोड़े की बहुत आभारी हूँ कि उसने तुम्हें सही समय जगह पर ला करके रुकाया है। तो मौत से हम लोग पीछा नहीं छुड़ा सकते सिवा कि ब्रह्म ज्ञान की नॉलेज से। अगर हम ब्रह्म ज्ञान से वाकिफ हैं तो अभी का अभी छूटे ही हुए हैं। ठीक है, और अब हम लोग उसके प्रति अपने कदम बढ़ाएंगे जो कि हमारे लिए मोस्ट एसेंशियल है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। क्या दौड़ता हुआ आदमी कभी अपने पैरों को छोड़ सकता है? क्या वह इंसान जिसे कुछ पकड़ने का मन है, क्या वह अपने हाथों को जुदा कर सकता है? क्या वह इंसान जिसको किसी से मिलने की इच्छा हो, वो अपने शरीर को छोड़ सकता है? इम्पोर्टेंस, पैरों को अनइम्पोर्टेंट मान सकता है, हाथों को अनइम्पोर्टेंट, शरीर को अनइम्पोर्टेंट, छोड़ने का मतलब अनइम्पोर्टेंट। लाओ त्से ने कहा है कि अगर मौत से ऊपर उठना है तो बस ठहर जाओ और अपने भीतर झांको कि तुम असल में कौन हो। तो अब मैं आपको एक दूसरे डायरेक्शन में लेकर के जाती हूँ। मान लीजिए यू आर सिटिंग इन अ रूम, तुम एक कमरे में बैठे हो। यह कमरा तुम्हारा अपना आप है, ये वो स्थूल कमरा नहीं है। योर beingness, this room, you're always sitting in your own beingness ना। आपको याद नहीं आता है बट है तो आप उसी के अंदर ना, आप उसको तो छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते ना। और तुम अपने बीइंगनेस में बैठे हो और एक खिड़की के सामने बैठे हो जहां से तुम्हें बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है तुमको पूरी तरह से उसका व्यू मिल रहा है। तुम उस दृश्य में तुम भी एक एक्शन कर रहे हो। तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि तुम खिड़की से देख रहे हो या एक मूवी के स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ठीक है, यू हैव अ चॉइस, आइदर यू थिंक ऑफ इट एज अ विंडो और दैट यू आर सिटिंग इन अ मूवी थिएटर एंड यू आर सीइंग अ मूवी। तुम्हारी जीती जागती मूर्त भी इसका हिस्सा है क्योंकि तुम स्वयं को देख रहे हो। अच्छा, क्योंकि तुम स्वयं को देख रहे हो इसलिए तुम खाली इसका ऊपरी भाग नहीं देख रहे हो, तुम अंदर से भी जान रहे हो कि इसके अंदर क्या क्या चल रहा है ना। यह तुम्हारी नोइंगनेस का हिस्सा है because the one that is being portrayed on the movie screen as yourself, you know that person too well because you are a part of its knowingness। समझ गए कि नहीं? तुम अकर्तापन में because you are sitting in your beingness ना, तुम अकर्तापन में हो, तुम उस दृश्य का में पार्टिसिपेंट नहीं हो। Imagine all this. Most of the time we are participating, but you are not the participant. पर्दे पर सब होते देख रहे हो। तुम पाओगे कि तुम, अब जब तुम ऐसे बैठ करके देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम एक अपूर्व शांति में हो। मूवी पिक्चर हॉल में जाते हैं तो हम शांत हो जाते हैं ना। तुम एक अपूर्व शांति में हो। संसार गुजर रहा है, तुम्हारा शरीर और उसके द्वारा किए हुए कर्म बस तुम्हारे सामने बह रहे हैं। तुम एक माइल्ड अटेंशन के साथ सब देख रहे हो। इस तरह एक अथाह
शांति तुम्हें घेर लेगी. You will be in the ambience of peace. You will be in a peaceful ambience. इस बिना कोई संबंध के देखने से तुम एक शांत सरोवर हो. When you are not related to even the person who, as you yourself are seeing, then you are in a shant pond. Peace के pond में हो. हृदय में गहन शांति और प्रेजेंटनेस की फीलिंग उतर आएगी तुम्हारे अंदर. अब देखिए, मेरे कहते कहते ही आप सबके हृदय में एक गहन शांति उतर आई है. This is very important. In a few seconds, you have experienced that shanti. अब तक हमने चाहा था कि अपना जगत परिवर्तित करना है, तब हम शांत हो पाएंगे. When my mother-in-law quietens, when my husband stops scolding, when my boss is become settled in his behavior pattern, then I will get the shanti. But just now we have come to know that it is in our own hands. अब दृश्य से हटकर देखो तुम क्या हो. Now forget this scene. Here, what were you? Here you were a drishta because your mind was involved. Now become detached and you will go into your sakshi. अब दृश्य से हटकर देखो तुम क्या हो. वह जो जान रहा है इस अथाह चुप्पी को, the one who knows this peace, this silence, वह जो असीम और limitless है. These are the qualities, these are the स्वभाव of that Brahma Tattva. वह जो जान रहा है इस अथाह चुप्पी को, वह जो खुद लिमिटलेस इनफाइनाइट है, वह जो आकार रहित है जिसका कोई फॉर्म नहीं, वह जो जानता है चैतन्य है, कॉन्शियसनेस. यू अंडरस्टैंड? तुम्हारे अंदर का इंसान नाहक ही परेशान हो रहा था. अपने घर लौटकर तुम इतना शांत और आनंदित हो सकते हो, इसका तुम्हें ही मालूम नहीं. अब हमारा दिल, दिमाग और कान सब तैयार हो गए हैं इस ज्ञान को आत्मसात करने. Am I right? Is that what your state is, that you really want to be there? There are no questions in you. नहीं ये तो नहीं हो सकता, नहीं ये तो नहीं हो सकता. We know we can be led in this way to our own home, back to our own. हम में से हर एक अब आतुर है, सेल्फ मोटिवेटेड है इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए. वे दिन बीत गए जब यह अवस्था बहुत दूर लगती थी कि हमारी पकड़ के तो ये बाहर है. बस अपने साथ ही तो बैठना है, अपने भीतर ही तो बैठना है. कल्पना जो सपने बुनती थी उनका साथ देना बंद करना है. What do we have to do? First, we have to sit with ourselves. Second, we have to internalize. Third, we have to stop running away with our imagination. Fourth, we now know that no amount of running after desires, even if they are fulfilled, will give me any lasting happiness. हम जितनी भी प्रार्थनाएं करते थे for the terrestrial plane, वो सब भी हमको सच्ची पूर्ति नहीं दे सकती. They cannot give us true fulfillment. तुम्हारी आत्मा उन प्रार्थनाओं के पहले थी. You, the self, was before
the desires came, before you started supplicating to God, before all of that, you were there. अब तुम इस बात को पहचानने लगे हो, पहचान कर उसमें स्थित हो जाओ, उसकी खुशबू, उसकी विश्रांति, परम रिलैक्सेशन को अपने भीतर संजो लो। मैंने यहाँ तक लिखा था 3 दिन पहले, and then those words came out of me. So I wrote up to here, and now I'm sitting. This is not some high funda philosophy. This is very day-to-day experience which all of us can go through. A few words are there which you may not be familiar with. But as soon as I tell you the meaning, you will say, अरे ये क्या बात है, ये तो मैं ही खुद experience कर सकती हूँ। उसके बाद मेरी चेतना में ये पंक्तियां उभर आई। मतलब मैं थोड़ी देर बैठी होंगी और जो कुछ मुझे एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद मैंने लिखा। ठीक है, अनंत बोध के सागर में, अनंत मतलब अनएंडिंग, बोध मतलब कॉन्शियसनेस, सागर यू ऑल नो, में डूबे अनंत बोध के सागर में यह मतलब मैं, यह डूबे और सजग हो। डूब के सो नहीं जाए, डूब करके सजग हो जाए, सपने की दुनिया को छोड़े, चेतन से गठबंधन हो। Complete alertness and you know how we are in a meditative state. अनादि अनाद के आनंद में, अनादि काल से जो साइलेंस, ऑल परवेडिंग साइलेंस, जो ऑल परवेडिंग शून्य, शिव का शून्य के आनंद में दूराति दूर, दूर से अति दूर, दूर से भी अति दूर दुनिया जावे। ये तो समझ गए, ब्रह्मरंध्र, दैट इज दिस, जिसको कहते हैं सहस्त्रार या ब्रह्मरंध्र, और द सॉफ्ट स्पॉट which is there in the body of a small child. The Atma Tattva enters the body of the small child through this Brahmarandhra, which is soft and not fully closed. Why is it not fully closed? If that Jivatma finds that this body is not suitable, it can go out of this door. So for few months, it is kept in a state where this Jivatma can easily come out of it. अनादि अनाद के आनंद में दूराति दूर दुनिया जावे, ब्रह्मरंध्र के बिंदु पर चेतनता खिंच कर टिक जावे. You know, when you are about to go into a meditative state, what happens? You feel that the energy rises. Do you feel that? So this is not something which is unknown to you, है ना? So you all feel this. ब्रह्मरंध्र के बिंदु पर चेतनता खींच कर टिक जावे, शबनम का झरना चोटी पर. Now this is also called चोटी. You know that? चोटी और ब्रह्मरंध्र एक ही है, समझ गए? तो शबनम मतलब ओस के कण, ओस के बिंदु, ओस की बूंदें, मतलब एक ठंडक और एकदम जैसे कि एक काइंड ऑफ समथिंग कीप्स ऑन sort of happening. मतलब the nerve endings are getting alive. Like जैसे इसको बोलते हैं ना, यहाँ सहस्त्र दल लोटस है, कमल है, सहस्त्र दल कमल का फूल है यहाँ पर, है ना? तो उसके एंटेनास जो हैं, the nerve endings, they want to escape outside this body because this body is not large enough to contain all the antenna. So there is some kind of an activity happening. I'm not saying my antenna has risen or anything like that. I'm not capable of all of that, but there was something happening, which I felt like a Shabnam ka jharna over here. Shabnam ka jharna चोटी पर सर्व विचार मिटा देवे. तो उस समय कौन सा विचार आएगा आपको? दुनिया का कोई विचार आ सकता है क्या आपको? अद्भुत आनंद के बादल में शरीर रहित हो जाए. शरीर रहित तो हम लोग ऐसे ही फील करते हैं,
हम लोग शरीर रहित फील करते हैं ना, अद्भुत आनंद के बादल में शरीर रहित ये हो जावे, पलक उठाते नहीं उठती। अब जब इस तरह की स्टेट से जा रहे हैं, आप गुजर रहे हैं, तो आपकी पलक खुलेगी क्या? आपकी तो पलक तो सेमी बंद ही हो जाएगी ना। सांस क्षीणता को पावे, और सांस भी मध्यम हो जाएंगे, मंद गति से चलेंगे। द बेयर मिनिमम ऑफ हलचल while taking the सांस। मात्र ब्रह्म ही स्थित है इधर जिधर ना वो ले जाए। तो इस तरह, सो दिस इज अ नेचुरल थिंग, इट इज नॉट समथिंग सो this thing about which we have to go gaga. This can be anybody's experience, all of us who are here and in the habit of going into meditation. You understand? यहाँ तक कैसे पहुंची मुझे मालूम नहीं, शायद निरंतर प्रयास। जो सब लोग बड़े लोग जो वाइज मैन हमको कहते हैं, जरूरत किन किन चीजों की है? निरंतर प्रयास। और वो प्रयास भी आप लोगों की वजह से मेरे साथ होता है। आप लोग नहीं होते तो क्या मैं लिखने को बैठती? थोड़ा झुकाव तो मेरा इस तरफ है ही, और थोड़ी सी डिसिप्लिन लाइफ होगी, इससे ज्यादा मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ। बाकी सब गुरु का ग्रेस है। तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं है कैसे जो कुछ होता है, मैं तो खोल करके आप लोग के सामने रख देती। If you have inside your heart the urge to be free, that is a mighty gift from God. Stop giving attention to the quirks of the mind. दिल में जानिए, आप इसी के लिए जन्म की यातना से गुजरे थे, इसी के लिए, for this kind of an experience. और असलियत क्या है कि हम में से कोई भी एक पल के लिए भी भगवान से जुदा नहीं हो सकता। मन ही यह भ्रम जुदाई का पैदा करता है, और हम जो है मन के प्रोजेक्शंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। इस तरफ कदम बढ़ाने से आपकी प्रेजेंस ही आपकी स्थिति का परिचय दे देगी। The minute you walk into any congregation, people will know that, you know, a person who is very different from the rest has walked in. और अगर आप शब्दों में कहेंगे कि भाई मैं तो आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, तो फिर वो शब्द जरा झूठे झूठे से लगने लगते हैं। पर जब आप एक एहसास के बाद वही शब्द बोलते हैं, then your words carry a different color and a different weight. Actually, it is very simple and yet very powerful to walk this path. हर मनुष्य इसी की खोज में है, पर वो जानता ही नहीं है कि वो असल में क्या चाह रहा है। अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सट्रोवर्ट करके हम ढूंढते हैं, तो हमको मंजिल नहीं मिल सकती है। केवल फ्रस्ट्रेशन और इल्यूजन ही हाथ आएगा, शांति तो मिल ही नहीं पाएगी। ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होकर के हम पैनी दृष्टि से इस जगत को देखेंगे, तो हम थोड़ा वैराग्य हासिल कर लेंगे। भैया मेरे बेटे ने भी तो मेरे साथ में उल्टा चला है। मेरा बेटा, जब मेरे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस ही ऐसे कर रहे हैं, तो फिर मेरे को वैराग्य थोड़ा आ जाएगा। अभी तक मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो खाली मेरे को वैराग्य हाथ में आएगा, और थोड़ा मेरे को चीजों से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि मैं जान लूंगी अरे भैया ये चीजें तो क्लटर अप करती हैं होम को, और कुछ नहीं करती। The peace within you has to be uncovered. It is not created by you. It is always there. जैसे देखिए, प्रकृति में हमको अच्छा लगता है क्योंकि प्रकृति is rooted in that peace. You are also rooted in that peace. So is the Prakriti. That's why you like to sit in a quiet, natural space. और एक और चीज है कि अपने जीवन में लव और इक्वानिमिटी को बढ़ावा दीजिए। फ्लो इन कंपैशन। कभी भी आपको मौका मिले तो हाथ और पर्स को खुला कर दीजिए, तब हम हमारे जीवन में वो डिविनिटी मैनिफेस्ट होने लगे। हमको कभी भी कुछ बनना नहीं। We don't have to become anything. We are already that.
परमात्मा की लीला चल रही है ऑन द फंक्शनल प्लेन, उसमें जो रोल मिला है उसमें थोड़ा सा अपना जो भी करना है, लेकिन हर समय जानना है कि मैं वो हूं एंड नॉट द एक्टर। जब यह जान जाए तो इस दुनिया में ही आनंद से रह सकते हैं। दिस world will become a joyful experience and not where we are victimized. But at the end, I just want to say that I am filled with gratitude and respect towards all of you, because through all of you, I am advancing on this path. And I am actually, जब हमारे जीवन में कोई भी उल्टा चलता है तो वो एक्चुअली हमको परमात्मा के और नजदीक लाता है। थैंक